गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग मास स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा आज का टॉपिक है आयन सोर्सेस। द टॉपिक फॉर टुडे इज़ आयन सोर्सेस। हम ये जानते हैं कि सबसे पहला स्टेप जो हमें मास स्पेक्ट्रोमेट्री में करना होता है वो क्या है, आयन प्रोड्यूस करने, और फिर फर्दर इन आयंस का एनालिसिस होगा। So there are several methods for converting the sample into gaseous ionic phase. These are as follows. हमें क्या करना है कि गैशियस फेज में सैम्पल को कन्वर्ट करना है, और इसके लिए डिफरेंट मेथड हैं, और इन डिफरेंट मेथड के नाम बेसिस पर हम इन टेक्निक्स को डिफरेंट नामों से जानते हैं। The ionization technique are of two types. First one is gas phase sources and other are desorption sources. In gas phase sources we have two types of ion sources. The first one is electron impact ionization. Electron impact ionization. It is commonly known as EI technique, EI method. The second one is chemical ionization, or we can say CI ionization. Similarly, desorption sources also have two techniques. First one is atmospheric pressure ionization, API, and the second one is fast atom bombardment, FAB, fast atom bombardment. अब इन टेक्निक्स को हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ EI, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। इट इज़ द टाइप ऑफ हार्ड आयोनाइजेशन टेक्निक ड्यू टू द हाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट। इसमें जब कोई इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है तो उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाई एनर्जी होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन को ईजिली नॉकआउट कर लेता है। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ हार्ड आयोनाइजेशन टेक्निक ड्यू टू द हाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट। अब these ions are accelerated at the voltage of approximately 10 to the power 4 volt. 10 to the, ये जो आयंस हैं इनका एक्सेलरेशन कराते हैं 10 to the power 4 volt पर। Ionization method as name include the impact of beam of high energetic electron to a gaseous phase or the volatile organic sample. इसमें सैम्पल कैसा होता है, either in the form of gaseous phase or in the form of volatile organic sample, and it includes the impact of beam of high energetic electrons. That means जब हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉनों की बीम स्ट्राइक करती है किस पर, सैम्पल पर, जो कि गैशियस फेज में है या वोलेटाइल फॉर्म में। नेक्स्ट, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट द सैम्पल इज ब्रोकन इनटू पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। अब इलेक्ट्रॉन के इम्पैक्ट से द सैम्पल क्या होता है, ब्रेक हो जाता है इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। The energetic electrons beam is emitted by a electrically heated tungsten or rhenium, which are then accelerated by the potential difference of 70 electron volt. Energetic electron beam produce करने के लिए we generally use tungsten metal or rhenium, which are accelerated by the potential difference of 70 electron volt. Now what happened? Collision between ions and molecules may also result in an ion with higher m by z values than the molecular ion. कभी कभी क्या होता है कि आयंस के बीच में कोलिजन हो जाता है, आयंस और मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिससे कि जो मॉलिकुलर आयन है उससे भी ज़्यादा m by z रेशो वाला आयन
प्रोड्यूस होता है. They may be positively or negatively charged. For example, M in the gaseous phase plus E minus. It gives M positive gas plus 2 electron negative. Where M क्या है? M positive free radical. That means it contains positive charge as well as lone pair of electron, known as M plus free radical is a radical cation, which gives the molecular weight because charge is 1, so it gives the value of molecular weight. This technique is known as electron impact ionization, that is EI technique. Next technique is chemical ionization. In short, we can say CI technique. जिन कंपाउंड में एक्सेसिव फ्रेगमेंटेशन होता है, मतलब फ्रेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा होता है, उनके लिए हम EI टेक्निक काम में नहीं ले सकते. दैट इज़ EI टेक्निक इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सर्टेन कंपाउंड्स ड्यू टू द एक्सेसिव फ्रेगमेंटेशन. तो ऐसे कंपाउंड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? CI टेक्निक या केमिकल आयनाइजेशन. क्या है केमिकल आयनाइजेशन? केमिकल आयनाइजेशन includes the ionization of reagent gas in high volume, approximately 1000 times more. Typically used reagent for this purpose is methane, ammonia, isobutane, etc. With the help of these gases, we produce ions. Firstly, at high pressure, the reagent gas is ionized, and subsequently these ionized gas molecule collide with sample as in the gaseous phase and bring about fragmentation. क्या होता है कि सबसे पहले हाई प्रेशर पर ये जो रिएजेंट गैस है, दैट इज़ मे बी मीथेन, अमोनिया और आइसोब्यूटेन एक्सेट्रा, इज आयोनाइज्ड, और इसके बाद ये जो आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स हैं ये सैंपल से कोलाइड करते हैं, जो कि किस फेज़ में है? गैसियस फेज़ में. और उसके बाद दिस रिजल्ट्स इनटू फ्रेगमेंटेशन. इसके बाद क्या हो जाता है? फ्रेगमेंटेशन हो जाता है टू प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ आयंस, जिससे बहुत सारे आयंस प्रोड्यूस होते हैं. अब CI फ्रॉम रिएजेंट आयंस फर्स्ट. CI मीन्स केमिकल आयोनाइजेशन. CI इज केमिकल आयोनाइजेशन. अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं मीथेन. CH4 is a methane. When electron is bombarded to it, it forms CH4 positive ion and 2 electrons. That is, 1 electron is knocked out from the methane. मीथेन में इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट हुआ तो क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया. क्या बन गया? CH4 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब ये जो CH4 है, इट कैन गिव्स वेरियस टाइप ऑफ फ्रेगमेंट. कौन कौन से फ्रेगमेंट दे सकता है ये? CH3 पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव एंड CH पॉजिटिव, बाय रिमूविंग सिंपली 1, 2 and 3 hydrogen atoms. Next is ion molecule reaction. This type of reaction create stable reagent ions. कैसे? आयन, कौन सा आयन हमने लिया? CH4 पॉजिटिव, और मॉलिक्यूल CH4 मॉलिक्यूल. तो क्या बन गया? रीअरेंजमेंट हुआ यहाँ, और इट गिव्स CH3 और CH5 positive ion. CH3 is a free radical. Similarly, CH3 plus ion react with molecule again to give hydrogen and C2H5 positive ion. तो CH5 positive ion and C2H5 positive ion are the dominant
मीथेन CI रिएजेंट आयंस। इनके करस्पॉन्डिंग हमको इंटेंस पीक मिलती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दीज आर डोमिनेंट मीथेन CI reagent ions. Next is reagent ions react with analyst. Several types of reaction may occur. बहुत सारे तरह की रिएक्शन हो सकती हैं. From pseudo molecular ions, suppose this is CH5 reagent ion. सबसे पहले क्या हुआ कि रिएजेंट आयन प्रोड्यूस हुआ CH5 पॉजिटिव आयन, ये मेटल से रिएक्ट करा, सॉरी ये अनदर मॉलिक्यूल से रिएक्ट किया, क्या बन गया CH4 प्लस MH प्लस. नाउ दिस इज M+1 ion and it can fragment further to produce a complex CI chemical ionization mass spectrum. कैसे? From adduct ion C2H5 प्लस M, तो ये क्या हुआ, एक एडक्ट प्रोडक्ट बन गया M प्लस C2H5 प्लस. मॉलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, C2H5 प्लस का है 29 और M जो एडक्ट है उसके मॉलिकुलर वेट के बराबर. इसी तरीके से C3H5 प्लस M इज इक्वल टू M प्लस C3H5 होल पॉजिटिव. दिस इज एड प्रोडक्ट नोन एज एडक्ट M प्लस 41. सिमिलरली मॉलिकुलर आयन बाई चार्ज ट्रांसफ़र, इन आयन्स में चार्ज ट्रांसफ़र भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल CH4 प्लस रिएक्ट विद M मॉलिक्यूल, तो ट्रांसफ़र इट्स पॉजिटिव चार्ज टू M, M बिकम्स पॉजिटिव प्लस CH4. तो हमको इन सब आयन्स के करस्पॉन्डिंग पीक्स मिलेंगी. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि द CI स्पेक्ट्रम विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड. सबसे पहले इसमें क्या होगा, द फर्स्ट स्टेप इज कि CI स्पेक्ट्रम में आयन्स जनरेट होंगे मीथेन से. कौन कौन से, में भी CH3 प्लस CH2 प्लस CH प्लस. फिर ये आयन मॉलिक्यूल से फर्दर इंटरेक्ट करेंगे और स्टेबल रिएजेंट आयन बनाएंगे लाइक CH5 पॉजिटिव एंड C2H5 पॉजिटिव. नाउ these stable ions react with analytes and form pseudomolecular ions such as M+1, MH positive, or from adduct ion M plus C2H5 positive, M plus C3H5 positive, or molecular ion by charge transfer such as M positive plus CH4 negative. Now one more method is hydride abstraction. It results in the production of M-1 ion. For example, C3H5 plus M. It forms C3H6 and MH positive. This type of adduction is common for saturated hydrocarbons. It is a soft ionization technique. हमने क्या देखा था कि EI is a hard ionization technique, but here it is a soft ionization technique. Soft ionization technique means it produces less fragmentation, और जो मॉलिकुलर आयन की पीक है वो अबंडेंट पीक होगी, उसकी वो जो है वो मैक्सिमम अबंडेंट पीक होगी. जबकि EI में हमने क्या देखा कि फ्रेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हुआ है,
मोर फ्रेगमेंटेशन, और मॉलिकुलर आयन की पीक जो है वो उतनी अबेंडेंट नहीं होती. दिस इज द सिंपल डायग्राम ऑफ मास एनालाइजर in case of CI technique. What happened? It is a long tube, which is kept in between the magnet north pole and south pole to generate magnetic field. Here the voltage is kept at 17 electron volt. So the gas ionizes very easily. Here we have a gaseous molecule. When the vapor from ion probe enter into the chamber, analyte vapor from GC or insert ion probe, they ionize the gas to get free electrons as well as analyte ion A, and they are converted into H plus, delta H plus. Delta H plus is analyte ion which is to be analyzed, जिसको हमें एनालाइज करना है. This analyte ion comes and focus according to different M by Z values. Generally for unipositive ion the value of Z is 1. So it gives the mass of different ions at different places. This is the function of mass analyzer. Next technique is atmospheric pressure ionization. The corona discharge produces primary ion in this technique. What do you mean by corona discharge? Corona discharge क्या है? The glow around the conductor at high voltage is known as corona discharge. किसी कंडक्टर में जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो उसके चारों तरफ जो ग्लो होती है वो कहलाता है कोरोना डिस्चार्ज. इस कोरोना डिस्चार्ज से प्राइमरी आयंस प्रोड्यूस होते हैं. मतलब दिस कोरोना डिस्चार्ज हैव ए कैपेसिटी टू रिमूव या नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस प्राइमरी आयंस और मॉलिकुलर आयंस. तो इस टेक्निक में हम क्या करते हैं? द नेबुलाइज्ड सैंपल वाया हाई स्पीड नाइट्रोजन गैस इज डिस्प्लेस्ड टू ए क्वार्ट्ज ट्यूबिंग कॉल्ड एज डिसॉल्वेशन चैम्बर. एक क्वार्ट्ज की ट्यूब होती है जिसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है. इस चैम्बर को हम कहते हैं डिसॉल्वेशन चैम्बर. और एक छोटी ट्यूब से सैंपल को हाई स्पीड पर नाइट्रोजन गैस को नेबुलाइज करते हैं, पास आउट करते हैं. तो हाई वोल्टेज पर तो क्या है? द कोरोना डिस्चार्ज इज प्रोड्यूस्ड. इन डिसॉल्वेशन चैम्बर these droplets are converted into mixture of compound which are subsequently carried to a corona discharge electron. सबसे पहले इस डिसॉल्वेशन चैम्बर में ड्रॉपलेट प्रोड्यूस होती हैं और वो कंपाउंड के साथ जिसको हमें एनालाइज करना है उस मिक्सचर के साथ वो कोरोना डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड पर जाती है, जहाँ कोरोना डिस्चार्ज प्रोड्यूसेस प्राइमरी आयंस इन दिस टेक्निक. This type of technique is known as API, atmospheric pressure ionization, API technique. Next technique is very important, fast atom bombardment. जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स और उनका मॉलिकुलर वेट बहुत हाई होता है, उनको
एनालाइज करने के लिए हम फास्ट एटम बम्बार्डमेंट टेक्निक को यूज़ करते हैं. फॉर पोलर मॉलिक्यूल्स सच एज पेप्टाइड्स with molecular weight up to 10,000 can be analyzed by soft ionization technique called as fast atom bombardment. इसमें थर्मली अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर भी वर्क करते हैं. The beam for bombardment is generally consist of xenon or argon gas atom of high energy. The beam is produced by ionizing xenon atoms by the electrons. इसमें डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन से बम्बार्डमेंट न करके इलेक्ट्रॉन्स से बम्बार्डमेंट करके पहले xenon या आर्गन गैस में से इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट करके उनको आयनाइज किया जाता है टू प्रोड्यूस xenon आयन और आर्गन आयन. अब इन आर्गन आयन या xenon आयन से बम्बार्डमेंट करके इलेक्ट्रॉन नॉकआउट किया जाता है इस टेक्निक में. सो दिस टेक्निक इज़ फास्ट एटम बम्बार्डमेंट. द बीम फॉर बम्बार्डमेंट इज जनरली कंसिस्ट ऑफ xenon or argon gas atom to high energy. This beam is produced by ionizing xenon atoms by the electrons. इस टेक्निक में the sample is dissolved in glycerol and fine layer formed over metal probe which is then ionized by fast beam of xenon या argon स्ट्राइकिंग द सैम्पल. सैम्पल को ग्लिसरॉल में डिज़ोल्व करके लेते हैं और फाइन लेयर के रूप में लेते हैं जो कि आयनाइज होती है किससे? फास्ट बीम ऑफ xenon या आर्गन स्ट्राइकिंग द सैम्पल. जनरली इट कॉजेज लेस फ्रेगमेंटेशन. इस टेक्निक में फ्रेगमेंटेशन कम होता है एंड molecular ion is obtained. और फ्रेगमेंटेशन कम होगा तो what happen? Molecular ion is obtained. So this is about different techniques used on the basis of ion source. Next about fragmentation on next lecture. Thank you.